Hello friends, welcome to my channel Home Science Insights. So as you already know, we have started the preparation for DSSB TGT Domestic Science exam to be conducted in 2023. So there were most important question series which is really important from exam point of view. We have already discussed few of the questions in the previous video. So if you have not checked the video, kindly go and check the video. Now let us quickly move to next section, that is the next series. So if you want to crack DSSB TGT Domestic Science exam, kindly give a like, share and subscribe the channel for more information. Without wasting our time, let us quickly move to question number 1. Which of the following enzyme helps in digestion of fat? इसमें से कौन सा एंजाइम है जो डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है? ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी अमाइलेज, डी ट्रिप्सिन. सो द करेक्ट आंसर इज बी लाइपेज. लाइपेज ऐसा एंजाइम है जो डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. शेयरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ. शेयरिंग किस प्रोसेस को कहा जाता है? ए रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, बी डाइंग द सिल्क, सी कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, डी रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम अ शीप. तो शेयरिंग प्रोसेस जो होती है उसमें हम वूल को शीप के ऊपर से निकालते हैं, उसे रिमूव करते हैं वूल को. Next, quickly come to question number 3. Which of the following standards is used to certify the purity of gold in India? A. ISI, B. Eggmark, C. Hallmark, D. FPO. So the correct answer is C. Hallmark. As you can see in the photograph, there is a symbol used for hallmark. So this kind of symbol is present in the jewelry which are certified in India. Let us quickly move to question number 4. Which of the following statement is incorrect? A. Gender is a social construct. B. Gender is a biological entity. C. Gender give rise to gender roles which are found to be approximately related to a particular sex. D. Gender is a femininity or masculinity that forms the basis of discrimination. So आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो गिवन है जेंडर के बारे में दैट इज इनकरेक्ट. सो एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इज जेंडर इज अ बायोलॉजिकल एंटिटी. हमारा जेंडर हमारे पैदा होने पे डिफाइन नहीं किया जाता. लेट अस क्विकली कम टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट का चुनाव करना है. ऑप्शन ए डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस. डेवलपमेंट क्वांटिटी में होती है. सेकेंड पार्ट डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव प्रोसेस. डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है. ऑप्शन सी एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड ऑप्शन डी ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस. ऑलवेज रिमेंबर दैट डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव प्रोसेस. लेट अस क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरिशेबल फूड. इसमें से ऐसा कौन सा खाना है जो नॉन पेरिशेबल है, मतलब जो कि लंबे समय तक चल सकता है, जो लंबे समय तक स्टोर करा जा सकता है, जो खराब नहीं होता. ऑप्शन ए मिल्क, बी ऑयल सीड्स, सी मीट एंड डी अनियंस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑयल सीड्स. बाकी जितने भी इसमें फूड प्रोडक्ट्स मेंशन हैं ये जल्दी खराब हो जाते हैं विच आर कंसिडर्ड इन अ पेरिशेबल आइटम. Let us quickly move to question number 7. Cognitive development refers to A. Physical changes in the size, structure, and proportion of the parts of the body. B. Emergence of thinking capabilities. C. Development of the sensory capabilities of vision, hearing, smell, touch, and taste. D. Control over body movements, which results in increasing coordination various parts of the body. So the correct answer is B, emergence of thinking capabilities. Always remember that cognitive development refers to mental capacities, mental skills. Question number 8. What type of diets are prescribed for the elderly people having kidney and chewing problems respectively? इनमें से कोई भी अगर एक बीमारी उन्हें होती है, किडनी प्रॉब्लम है या च्यूइंग प्रॉब्लम है, तो आप किस तरीके की डाइट एल्डरली को रिकमेंड करें? ऑप्शन ए लो प्रोटीन डाइट एंड लिक्विड डाइट. क्या आप उसे लो प्रोटीन डाइट और लिक्विड डाइट पर रखेंगे? ऑप्शन बी हाई प्रोटीन डाइट एंड सॉलिड डाइट. विल यू प्रोवाइड हाई प्रोटीन एंड सॉलिड डाइट टू द एल्डरली? ऑप्शन सी हाई प्रोटीन डाइट एंड लिक्विड डाइट, और ऑप्शन डी लो प्रोटीन डाइट एंड मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट. सो ऑलवेज रिमेंबर that when a patient is suffering from kidney or chewing problems, we always give low protein to the
elderly. So the correct answer is low protein diet and mechanical soft diet. Let us quickly move to question number 9. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर है जो इनकरेक्ट है. विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी 1 इज थायमीन, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन बी 6 कोलिकैल्सिफेरॉल. सो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर है विच इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन बी 6 कोलिकैल्सिफेरॉल. These combinations are not correct. Let us quickly move to question number 10. That is the last question of today's series. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बच्चे और चिल्ड्रन के बारे में दी गई है जो कि गलत है? ऑप्शन ए, चिल्ड्रन आर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स. क्या चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होते हैं? ऑप्शन बी, चिल्ड्रन हैव देयर ओन राइट्स. क्या बच्चों के अपने राइट्स होते हैं? ऑप्शन सी, चिल्ड्रन आर नॉट हेल्पलेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ चैरिटी. बच्चे कोई भी हेल्पलेस ऑब्जेक्ट्स नहीं होते चैरिटी का. ऑप्शन डी, चिल्ड्रन आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स. बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं होते. सो द ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर, बट ऑप्शन ए, चिल्ड्रन आर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी होते हैं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. So here we end the video for today. If you like the video, kindly like, share and subscribe the channel and recommend to all the home science lovers for better knowledge and understanding. Let's meet up in the next video. Okay, take care. Bye bye.